تصور کریں ایک ایسا شخص جو کبھی صدر نہیں بنا، جس نے کبھی عوامی الیکشن نہیں لڑا، لیکن پھر بھی وہ ایران کا سب سے طاقتور انسان بن گیا۔ ایسا شخص جسے دنیا برسوں تک شیڈو لیڈر آف ایران کہتی رہی، اور پھر اچانک ایک حملہ، ایک موت اور ایک خفیہ فیصلہ، اور مجتبی خامنئی ایران کے سپریم لیڈر بن گئے۔ یہ ہے اس شخص کی کہانی جو سایوں میں رہ کر ایران کی سیاست چلاتا رہا۔ جی ہاں، آج ٹاپک آف ڈسکشن ہے مجتبی خامنئی، آیت اللہ علی خامنئی کے بیٹے، جنہیں اب ایران کا سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ ویڈیو کو کائنڈلی کمپلیٹ دیکھیں، اور اگر اسے پورا دیکھنے پر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے کائنڈلی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ مجتبی خامنئی 1969 میں ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن یہ ایران کی سیاست کے سب سے بڑے لیڈروں میں شامل ہو جائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا خاندان کوئی عام خاندان نہیں تھا، وہ آیت اللہ علی خامنئی کے بیٹے ہیں۔ آیت اللہ علی خامنئی ایک نوجوان مذہبی عالم جو اس وقت ایران کے شاہی نظام کے خلاف سرگرم تھے۔ اس وقت ایران پر حکومت تھی محمد رضا پہلوی کی، جسے عام طور پر شاہ ایران کہا جاتا ہے، لیکن شاہ کے خلاف ایک خفیہ تحریک زور پکڑ رہی تھی، اور اس تحریک کی قیادت کر رہے تھے روح اللہ خمینی۔ 1970 کی دہائی میں ایران کی سڑکوں پر غصہ بڑھنے لگا، لوگ شاہ کی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، مذہبی علماء، طلباء اور عام شہری سب ایک آواز بن چکے تھے۔ اسی دوران علی خامنئی بھی شاہ مخالف تحریک کا حصہ بن گئے، انہیں کئی بار گرفتار کیا گیا اور جیل بھی بھیجا گیا۔ ان کے گھر کا ماحول مسلسل خطرے میں تھا۔ سوچیں، ایک چھوٹا سا بچہ مجتبی جو بار بار دیکھتا تھا کہ اس کے والد کو حکومت کے خلاف سرگرمیوں پر بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب سیاست اس کی زندگی کا حصہ بننے لگی۔ پھر آیا وہ تاریخی لمحہ جس نے ایران کی سیاست کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ 1989 میں ایرانین ریولوشن ہوتا ہے، شاہ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے اور شاہ ملک چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے، اور جلاوطنی میں رہنے والے روح اللہ خمینی فاتح کی طرح ایران واپس آتے ہیں۔ ایران اب دوبارہ ایک اسلامی جمہوریہ بن چکا تھا۔ اسی انقلاب کے بعد آیت اللہ علی خامنئی تیزی سے طاقت کے مرکز میں آ گئے۔ وہ پہلے پارلیمنٹ کے رکن بنے، پھر ایران کے صدر، اور آخرکار 1999 میں ایران کے سپریم لیڈر بن گئے۔ انقلاب کے بعد مجتبی خامنئی کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ وہ اس خاندان کا حصہ تھے جو ایران کے سب سے طاقتور مذہبی اور سیاسی قیادت کا حصہ بن چکا تھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اپنے والد کی طرح عوامی سیاست میں واضح طور پر سامنے نہیں آتے تھے۔ انہوں نے خاموشی کو ترجیح دی، اور یہی خاموشی بعد میں ان کی طاقت بن گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسی خاموشی اور محتاط طبیعت نے انہیں بعد میں ایران کی سب سے طاقتور قیادت تک پہنچا دیا، اور یہی لڑکا جو انقلاب کے شور میں بڑا ہوا تھا آگے چل کر ایران کے سب سے بڑے سیاسی اعضوں میں شامل ہو گیا۔ ابھی انقلاب کی گرد بیٹھی ہی نہیں تھی کہ ایران ایک نئے بحران میں پھنس گیا۔ 1980 میں ایران اور عراق کی جنگ شروع ہوئی۔ عراق کے صدر صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ صرف سرحدوں کی جنگ نہیں تھی، یہ انقلاب کو بچانے کی جنگ بن گئی۔ لاکھوں ایرانی نوجوان فوج میں شامل ہونے لگے۔ ملک کے ہر شہر اور گاؤں میں جنگ کا ماحول تھا، اور انہی دنوں یہ نوجوان بھی اس ماحول سے متاثر ہو رہا تھا۔ اس کے والد اس وقت ایران کی انقلابی قیادت کے رہنما تھے۔ جنگ کے دوران ایک طاقتور فوجی تنظیم ابھری جسے کہا جاتا ہے IRGC، یعنی اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس۔ یہ تنظیم صرف فوجی طاقت نہیں تھی بلکہ انقلاب کی محافظ بھی سمجھی جاتی تھی۔ اس ماحول میں مجتبی نے بھی سیاسی حلقوں اور سیکیورٹی نیٹ ورک کے ساتھ تعلقات بنانا شروع کیے۔ ذرائع کے مطابق جنگ کے دوران وہ ڈائریکٹلی سیکیورٹی نیٹ ورک کے ساتھ منسلک بھی رہے۔ یہی تجربہ بعد میں ان کی سیاسی طاقت کا اہم حصہ بن گیا۔ جنگ کے بعد مجتبی نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے سیاست میں کھل کر آنے کے بجائے مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ ایران کے مذہبی مرکز قوم چلے گئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شہر ایران میں مذہبی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ یہاں دنیا بھر سے طلباء فقہ اور شیعہ تعلیمات لینے آتے ہیں۔ یہی مجتبی نے مشہور شیعہ علماء کے زیر سایہ تعلیم حاصل کی۔
इसी दौरान उन्होंने मजहबी हलकों में आहिस्ता आहिस्ता अपना असर बढ़ाना शुरू कर दिया। 1990 और 2000 की दहाई तक मुज्तबा एक पुरस्रार शख्सियत बन चुके थे। वो अवाम के सामने कम नजर आते थे, लेकिन हुकूमती हलकों में उनकी ताकत का असर बढ़ता जा रहा था। उस वक्त भी बहुत से लोग कहते थे कि वो सिर्फ सुप्रीम लीडर के बेटे नहीं, बल्कि ईरान के आने वाले मुमकिन हुक्मरान भी हैं। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि यह सफर मुज्तबा ने कैसे तय किया। ईरान में सबसे ताकतवर ओहदा होता है सुप्रीम लीडर का, और इस वक्त ये ओहदा था आयतुल्लाह अली खामनाई के पास। लेकिन बहुत से बड़े सियासतदान और साफी कहते हैं कि अगर किसी को उस वक्त भी सुप्रीम लीडर तक रसाई चाहिए होती तो उन्हें एक शख्स से गुजरना पड़ता, और वो शख्स थे सैयद मुज्तबा खामनाई। वो किसी सरकारी ओहदे पर फाइज नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी ताकत का मरकज वही थे, क्योंकि सैयद मुज्तबा खामनाई के बारे में कहा जाता है कि उनकी शख्सियत का बहुत बड़ा एलिमेंट है हिकमत। वो सोच समझकर फैसले लिया करते हैं। इसी वजह से किसी ओहदे पर ना होने के बावजूद भी उनके पास इतनी पावर थी कि वो डायरेक्टली सुप्रीम लीडर तक किसी को भी रसाई दे सकते थे, और किसी को चाहे तो वो उसे रोक सकते थे। इसलिए बाज़ तज्जियाकार उन्हें कहते हैं शैडो प्रिंस ऑफ ईरान, यानी ईरान का खुफिया शहजादा। 2009 में ईरान में सदारती इंतखाब हुए और नतीजा आया मोहम्मद अहमदी निजाद की जीत का। लेकिन अपोजिशन रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन में धांधली हुई है। जो रोना पाकिस्तान में हमारे लीडर भी इलेक्शन के बाद अक्सर होते हैं। उसके बाद ईरान में बड़े मुजाहरे शुरू हो गए। इस तहरीक को कहा जाता है ईरानियन ग्रीन मूवमेंट। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। ये इनकलाब के बाद ईरान में सबसे बड़ी अवामी बगावत थी। इसी दौरान सियासी शख्सियात और नाकिदीन ने दावा किया कि मुजाहिरों को कुचलने के फैसलों में मुज्तबा खामनाई का किरदार था, क्योंकि इन मुजाहिरों को कुचलने के लिए IRGC और बाकी फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया था। इल्जाम यह भी लगाया गया कि उन्होंने सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों को इस बगावत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म करके खड़ा किया, अगरचे इन इल्जामात की बाज़ाब्ता तस्दीक कभी भी नहीं हुई। इसलिए मुज्तबा की शख्सियत हमेशा पुरस्कार रही। ना वो अक्सर मीडिया में नजर आते, ना ही वो अवामी तकारीर करते, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान की सियासत में उनका असर बढ़ता जा रहा था। जैसा कि मैंने आपको पहले आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बारे में बताया है कि कैसे और क्यों ये वाकया हुआ। अगर आप उसके बारे में मजीद जानना चाहें तो लिंक ऊपर पिन है, आप देख सकते हैं। उनकी शहादत के बाद बहुत सारे नामों पर गौर किया गया कि अब आने वाले दिनों में ईरान का सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। ईरान में सुप्रीम लीडर सिर्फ एक सियासी ओहदा नहीं होता, ये वो शख्स होता है जो फौज, अदालत, इंटेलिजेंस इदारों और हत्ता के ईरान के एटमी प्रोग्राम तक डायरेक्ट रसाई रखता है, और इन तमाम चीजों के बारे में हतमी फैसले का इख्तियार भी इसे ही होता है। इसीलिए अगर सुप्रीम लीडर की मौत हो जाए तो पूरा निजाम हिलकर रह जाता है। जब अली खामनाई की शहादत की खबर फैली तो ईरान के ताकतवर हलकों में हंगामी मुलाकातें शुरू हो गई। फैसला ये करना था कि अब ईरान की क़यादत कौन संभालेगा। इसी दौरान ईरान की सबसे बड़ी मजहबी कौंसिल असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स एक हंगामी और फौरी इजलास बुलाया गया। ये वो कौंसिल है जो ईरान के सुप्रीम लीडर का इंतखाब करती है। दरवाजे बंद थे, मीडिया को कोई रसाई नहीं थी, और अंदर ईरान के मुस्तकबिल का फैसला हो रहा था। इस इजलास में कई नाम ज़ेरे गौर आए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत से नामों पर गौर किया गया था, लेकिन उनमें से एक नाम ऐसा था जो पहले ही इन तमाम तर मामलात को अच्छी तरह संभालना जानता था। वो नाम था मुज्तबा खामनाई का। वो बरसों से अपने वालिद के दफ्तर के अंदरूनी हलकों में मौजूद हैं। फौज और मजहबी क़यादत के साथ उनके मजबूत ताल्लुकात हैं, और शायद यही वजह थी कि फैसला बहुत जल्द हो गया और उनके नाम को फाइनल कर दिया गया। 8 मार्च 2026 को ईरान की गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया कि मुज्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए। ईरान की आवाम में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा हालात में ईरान और USA की कशीदगी जारी है। इस जंग का तब तक कोई फैसला नहीं हो सकता जब तक कोई एक हरीफ पीछे हटने को तैयार ना हो जाए या एक मुकम्मल तौर पर तबाह ना हो जाए। अब सवाल ये है कि क्या मुज्तबा खामनाई अपने वालिद की तरह उनके मिशन को लेकर प्रॉपरली चलेंगे या फिर टेबल टॉक के लिए राजी हो जाएंगे। मगर इंटरनेशनल मीडिया की खबरों के मुताबिक ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि मुज्तबा खामनाई ने जब क़यादत संभाली है तो उसी वक्त खैबर शिकन मिसाइल की वीडियोस जारी की गई हैं और उसके साथ साथ इजराइल पर क्लस्टर बम बरसाए गए हैं। इससे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि ईरान रुकने वाला नहीं है। ट्रेंडिंग में एक मीम भी चल रही है कि ट्रंप का कहना है कि मैंने ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश की है, मगर ईरान ने कहा कि हम शैतानों से रमजान में बात नहीं करते। बाय द वे, जो भी हो, अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़-ए-मान में रखे और अल्लाह पाक ईरान की लीडरशिप की मदद फरमाए ताकि वो कुफ्फार से इसी तरह लड़ते रहें।
इसके साथ साथ इजराइल और यूएस की गवर्नमेंट ईरान के नए सुप्रीम लीडर्स को जान लेने की धमकियां भी दे रही है। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि ये वो कौम है जो इन धमकियों से नहीं डरती। आज 19 रमजानुल मुबारक है। इस रोज फजर के वक्त मौला अली इस्लाम पर कत्लाना हमला हुआ और मौला ने सजदे में सर रखकर एक स्टेटमेंट दी कि रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। और मौजूदा सूरत हाल देखें तो ईरान में भी मौला अली के गुलाम मौजूद हैं, वो भी उसी मिशन पर चल रहे हैं। ये लड़ाई हक और बातिल की लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ तख्त छीनने के लिए नहीं है, ये लड़ाई है मजलूमों को हक दिलाने की। ये लड़ाई है इंसाफ के लिए। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि ईरान में मुकम्मल तौर पर इस्लामी कानून नाफिज है। अगर ईरान के साथ भी आज सिर्फ इस्लामी जमहूरिया लिखा हुआ होता और उनका ऐसा अमली किरदार ना होता तो यूएस कभी भी उन पर हमला ना करता। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिन पर हमें सोच विचार करने की जरूरत है। आज मुज्तबा खमनई ईरान के सबसे ताकतवर लीडर्स में शुमार होते हैं। उनके हाथ में फौज की ताकत है, एटमी प्रोग्राम का कंट्रोल है और वो मशरिकी वस्ता की सियासत पर असर भी रखते हैं। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि उन्हें अल्लाह पाक हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपका होस्ट असनात नवाज आपसे इजाजत चाहूंगा। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।